أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على منكر فضائلهم وغاصب حقوق مجمعين صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری یا عیدی، حیدری یا عیدی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ برائے ظہور المنتقی میں ہونے امام حسن بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ میری مولا کی عزادار ماں بہنوں، آج میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کی پاک ولادت کا دن ہے۔ آج باغ رسالت میں ایک عجب بہار آئی ہے۔ آج باغ رسالت میں ایک عجب بہار آئی ہے۔ رسول پاک خوش ہیں، مولا علی خوش ہیں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا خوش ہیں، بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آج خود جل جلالہ اللہ کی پاک ذات خوش ہے۔ آج خود جل جلالہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات خوش ہے، ساری کائنات خوش ہے، تو پھر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ آج میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کا پاک ظہور ہے۔ میرے مولا کی خوشیاں جو ہیں وہ ہماری خوشیاں ہیں، میرے مولا کے غم ہمارے غم ہیں۔ اگر اہل بیت کے گھر میں خوشیاں ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر اہل بیت کے غم میں غم ہے تو ہم بھی غم ہیں۔ ہمیں اپنے غموں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ان کی خوشی میں ان کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اہل بیت کے گھر میں سوگ ہے تو ہماری خوشیاں بے معنی ہیں، اگر اہل بیت کے گھر میں سوگ ہے تو شہادت ہے تو ہماری خوشیاں بے معنی ہے، بے مروت ہے۔ اگر اہل بیت کے گھر میں سوگ ہے تو ہماری خوشیاں بے معنی ہے۔ تو ہم آج اس لیے خوش ہیں کہ اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے۔ آج میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کی پاک آمد کا دن ہے۔ یہ وہ گھرانہ اس لیے خوش ہے کہ آج دنیا میں میرے مولا حسن المجتبیٰ تشریف لائے۔ یہ رسول پاک کے گلشن کی تیسری کلی، مولا علی کے باغ امامت کی پہلی کلی ہے۔ کسا کا چوتھا رکن دوسرا امام زمن ہے، میدان مباہلہ کا چوتھا صدیق اور خدا کا پیارا رفیق ہے۔ کیا فضیلت، کیا مرتبہ مقام ہے میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کی پاک ذات، میرے رسول کے دائیں کاندھے کا پہلا سوار اور نانا کے دل کا قرار، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا راج دلارا، مولا علی کی آنکھ کا تارا ہو، انہیں امام حسن المجتبیٰ کہتے ہیں۔ دین خدا کا جو سہارا ہو، رسول خدا کے دل کا پارا ہو۔ 15 رمضان کا دن بہت پیارا ہے۔ آج میرے مولا امام حسن کا ظہور پر نور ہے، میرے مولا نے سایہ تطہیر میں پرورش پائی۔ کیا فضیلت، کیا مرتبہ مقام ہے میرے مولا کی پاک ذات کا، کیا فضیلت، کیا مرتبہ مقام اللہ کی جانب سے میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کو دیا گیا کہ انہوں نے سایہ تطہیر یعنی تطہیر کے زیر سایہ جو پرورش پائی، انہیں امام حسن المجتبیٰ کہتے ہیں۔ ہمیں کسی پر الزام ہے کہ ہم مولا حسن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مولا حسن بھی اتنے عزیز ہے جتنے امام علی اور امام حسین عزیز ہیں۔ مولا حسین کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں مولا حسن کی نسبت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مولا حسن عزیز نہیں، مولا حسن بھی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے امام حسین علیہ السلام عزیز ہیں۔ ہم تو ولادت سے لے کر شہادت تک سارے واقعات بیان کرتے ہیں، ہم ہی تو بتاتے ہیں کہ مولا حسن کو زہر کس نے دیا تھا، کس کے کہنے پر دیا گیا تھا۔ ہم ہی نے تو بتایا کہ مولا حسن کے جنازے پر تیر کس نے چلائے تھے، کیوں چلائے تھے، آخرکار ان کا تیر چلانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ کس کا حکم تھا کہ مولا حسن کو روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دیا جائے، یہ کس کا حکم تھا کہ مولا حسن کو روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دیا جائے۔ اور میں ان صاحبان سے کہتی ہوں کہ شہادت بیان کرو مولا حسن کی، اور بتاؤ کہ قاتل کون تھے اور وجہ قتل کیا تھی میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کی، صلح کا بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کن شرائط پر میرے مولا کے ساتھ جو ہے صلح کی گئی تھی۔ ہوٹوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے اسی بات پر ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ کسی غزل کا ہے، مگر اس موضوع پر بڑا فٹ آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے جو ہے زیر نظر کیا جائے۔ ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اے دل، یہ بتا کس منہ سے کہیں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اے دل، یہ بتا کس منہ سے کہیں، کچھ اپنوں کا نام آتا ہے بہتر ہے خاموش رہیں۔ پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ اگر مولا حسن سے محبت کا دعویٰ ہے تو بیان کرو، بتائیں کہ کس نے میرے مولا کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے مولا حسن المجتبیٰ کے جنازے پر تیر چلائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں واقعی امام حسن کے فضائل و مسائل بیان کرنے والے موجود ہیں۔ تو آج بھی مولا حسن المجتبیٰ کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا حسن المجتبیٰ کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور زمانے کو بتاتے ہیں کہ کیا فضیلت، کیا مرتبہ مقام اللہ پاک کی جانب سے میرے مولا امام حسن المجتبیٰ کو دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا حسن سوائے مولا علی کے باقی تمام اماموں کے امام ہیں۔
चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है और हसन अल-मुश्तबा के वालिद मोहतरम हैं, और बाप की जो फजीलत या मर्तबा मकाम अल्लाह पाक ने दिया वो हम जारी बात है, क्योंकि वो उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके बाप हैं, और फिर इमाम अव्वल भी हैं, वक्त के इमाम भी हैं। इस लिहाज से उनकी फजीलत जो है इमाम हसन से ज़्यादा है। मेरे मौला हसन वो है कि जिसने मौला हुसैन की उंगली पकड़कर इमामत की राहों पर चलना शुरू किया। मेरे हसन अल मुश्तबा वो साथ हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की उंगली पकड़कर इमामत की राहों पर चलना शुरू किया। मेरे मौला हसन वो अजीम हस्ती है जिसे मौला हुसैन भी इमाम कहते हैं। क्या फजीलत, क्या मतलब मकाम है उस हस्ती का कि जिनको इमाम हुसैन भी हुसैन हो के इमाम कहे, उन्हें हसन कहते हैं। हुसैन हुसैन हो के जिसके सामने दस्ते अदब बांध कर जो है सर झुका के अपनी निगाहों को झुका के रखे और कहे कि आका हुक्म कीजिए, उन्हें हसन कहते हैं। इससे बड़ी फजीलत मर्तबा मकाम क्या बयान करे करीम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पाक साथ का। अमीरुल मोमिनीन आपकी कुनियत और अबुल हसन है। मेरे मौला 15 शबान और कहीं पर 15 रमज़ान लिखा जाता है। 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में ज़ुहूर पसीर हुए। मेरे मौला के अलकबात में जो मशहूर अलकबात हैं उनमें से चंद मैं आपके सामने जो है आपके ज़ेरे नज़र करूँगी। ज़की, सब्त, तैयब, मुश्तबा, सब्ज़, ये तमाम 5 इसम हैं जो मेरे मौला हसन अल मुश्तबा की पाक साथ से मंसूब है। मेरी माँ बहनों, ये सब्ज़ कोई आम कबा नहीं है। मेरी माँ बहनों, ये सब्ज़ कबा कोई आम कबा नहीं है। ये वही लिबास है जो जन्नत से जिब्राइल दर्जी बनकर लाया था, जो जन्नत से जिब्राइल दर्जी बनकर लाया था। ये वो हस्तियां हैं कि जिनके लिए जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी दर्जी बनकर आए, उसे हसन अल मुश्तबा कहते हैं। क्या फजीलत, क्या मर्तबा मकाम अल्लाह पाक ने दिया मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा की पाक साथ को कि जिब्राइल जैसा फरिश्ता जो है दर्जी बन के लाए जा रहे हैं इनकी तरफ, जो फरिश्तों का सरदार है। क्या फजीलत, क्या मतलब मकाम है जिब्राइल का। लेकिन यहाँ पर आके दर्जी बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि जमाने को पता चले कि वो हस्तियां हैं जिनके लिए फरिश्तों के सरदार को कम अज कम दर्जी बनाया जाता है। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए कम अज कम फरिश्तों के सरदार को दर्जी बनाया जाता है। परवरदिगार आलम की जानिब से निशानियां थी कि हुसैन का खून बहाया जाएगा और हसन को मसमूम किया जाएगा। मेरे मौला हसन की मुद्दत खिलाफत सिर्फ और सिर्फ 7 माह तक थी। यानी इतने को मेरे मौला से मुखालिफत थी कि 7 माह से ज़्यादा लोग मौला हसन अल मुश्तबा को बर्दाश्त नहीं कर सके। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने सिर्फ 7 माह तक इस बानी इस्लाम को बर्दाश्त किया और मौला हुसैन की तो खिलाफत दी ही नहीं गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को तो खिलाफत दी ही नहीं गई। मेरे मौला को तो मौका ही नहीं मिला। मुसलमानों ने बल्कि यजीद की बैत का पैगाम देते रहे और कहते रहे कि यजीद की बैत कर लें, यजीद की बैत कर लें, लेकिन फिर भी मेरे मौला हुसैन बादशाह हक पे डटे रहे और कहते रहे कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। जितनी दफा मौला हुसैन को यजीद का पैगाम पहुंचाया गया, उतनी दफा मेरे मौला हुसैन बादशाह ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। आप सखी इब्न सखी है। ये जो घरों में हम दस्तरखान सजाते हैं, मौला हसन का दस्तरखान होता है। ये हमारे घर में जितने भी दस्तरखान सजते हैं, ये मौला हसन के उस दस्तरखान का सजदा सदका है जो मदीने में सजा था। ये उसी दस्तरखान का सदका हम आज अपने घरों में मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा का दस्तरखान सजाते हैं। मेरे मौला का दस्तरखान मदीने में बड़ा मशहूर था। सब लोग बिना इम्तियाज आकर खाते थे। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, एक बड़े मशहूर वाक़या जो तारीख में हमें मिलता है कि एक शख्स भूख से निडाल था। वो खजूरों के एक बाग से गुजरा था जहाँ अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब मजदूरी कर रहे थे। इस शख्स ने सोचा कि मैं इससे खाने का सवाल करता हूँ, यकीनन इसके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा। भूखा जो था, उसे भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ। उसको ये नहीं मालूम था कि ये अमीरुल मोमिनीन इमाम अली है। उसने कहा मैं मौला से पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ इस शख्स से, हो सकता है इसके पास कुछ खाने के लिए हो और ये मुझे इनायत फरमा दे। उसको भूख लग रही थी। उस शख्स ने आकर खाने का सवाल किया। आपने जो अपने लिए सूखी रोटी रखी थी इसके सामने पेश कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने जो सूखी रोटी अपने खाने के लिए रखी थी उस शख्स के सामने पेश कर दी। उस शख्स ने कहा कि ये तो सूखी रोटी है, मुझसे ना खाई जाएगी। उस शख्स ने कहा कि ये रोटी सूखी है, बड़ी तवज्जो रखिएगा, ये रोटी सूखी है, मुझसे ये रोटी नहीं खाई जाएगी, कुछ और है तो मुझे दे दीजिए। मेरे मौला ने उस शख्स की तरफ देखकर मुस्कुराया, फरमाया ऐ शख्स, यहाँ से थोड़ी ही दूर फासले पर मदीने में वहाँ चले जाओ और किसी से भी हसन अल मुश्तबा का दस्तरखान पूछ लेना, और किसी से भी हसन अल मुश्तबा का दस्तरखान पूछ लेना, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का सब कुछ मिल जाएगा। लिहाजा वो शख्स मदीने पहुंच गया, दस्तरखान का पूछा, लोगों ने बताया। वहाँ इसने देखा कि बेहतरीन खाना लोगों को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ पेश किया जा रहा है। बेहतरीन खाना लोगों को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा के दस्तरखान पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा ये वहाँ पर बैठ गया और इसके सामने भी बेहतरीन खाना जो है पेश किया गया। अब इसने क्या किया कि खाना खा भी रहा था और कुछ थोड़ा थोड़ा सा बचा भी रहा था, क्योंकि उसने देखा ना कि पीछे एक शख्स जो है वो बूढ़ा आदमी अपने लिए सूखी रोटी खा रहा था, तो ये उसके लिए कुछ कुछ बचा भी रहा था। जब वहाँ के खिदमत गुजारों ने मालूम किया कि ये खाना तुम क्यों बचा रहे हो, उसने
जवाब दिया। उससे पूछा गया कि किसके लिए बचा रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बहुत ही भूख लगी थी। मैंने मदीने से बाहर जो बाग है वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स जो है वो बहुत ही गरीब मालूम हो रहा था। जब उसे खाने का सवाल किया तो उसने सूखी हुई रोटी मुझे खाने के लिए दे दी। लिहाजा मैं ये रोटी जो है उसी शख्स के लिए बचा के रख रहा हूँ, तो वापसी पे जो है उसको देता जाऊंगा कि वो बेचारा इतना बुरा है, वो सूखी रोटी कैसे खाएगा। उसी ने मुझे यहाँ का पता बताया और ये खाना मैं उसी के लिए ले जा रहा हूँ। जिसके जवाब में वहाँ के खिदमत गुजारों ने शख्स से कहा, बड़ी तवज्जो रखिएगा, क्या करीम इब्ने करीम है, उनके करीमे पर तवज्जो रखिएगा कि क्या कितने सकी इब्ने सकी हैं, कितने करीम इब्ने करीम है मेरे मौला इमाम अली, कि मेरे मौला की करीमी आप देखिएगा। जिसके जवाब में वहाँ के खिदमत गुजारों ने शख्स से कहा कि तू जिस बुरे शख्स की बात करता है वो अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब है, और ये दस्तरखान जो जिससे आप खाना खा रहे हैं ये उन्हीं के साहबजादे मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा का है। कितनी हसीन और खूबसूरत बात है कि उन्होंने हमें क्या दर्श दिया कि सूखी रोटी के साथ भी मेरे मौला ने खुद रोटी खाई, जबकि लोगों को जो है इतने हसीन और खूबसूरत और इतने शानदार लजीजा खाने खिला रहे हैं और खुद मेरे मौला जो है सूखी हुई रोटी खा रहे थे। ये बात सुनकर वो शख्स हैरान रह गया कि कोई शख्स जिसके यहाँ दस्तरखान इतना वसीम हो वो खुद सूखी रोटी खाता है। ये दस्तरखान वाला हसन अल मुश्तबा का है, ये वो घराना है जो खुद नहीं खाता बल्कि दूसरों को खिलाता है। ये वो घराना है जो खुद नहीं खाता बल्कि दूसरों को खिलाता है। ये वही अली है जिसने दर खैबर उखाड़ कर जब मरहब को बिछाड़ा। ये बूढ़ा नजर आने वाला वही शख्स है जिसने हर मैदान में रसूल खुदा की नुसरत की। ये बूढ़ा नजर आने वाला शख्स वही है जिसने हर मैदान में रसूल खुदा की नुसरत की। तो मेरी माँ बहनों, मेरी अज़ादार माँ बहनों, ये शान है मेरे मौला इमाम हसन की। इसके बाबे जैसा किसी का बाबा नहीं, इसकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, इसके नाने जैसा किसी का नाना नहीं, बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूँ कि मौला हसन जैसा कायनात में कोई नहीं। तो यकीनन गलत ना हो, बेशक मेरे मौला हसन अल मुश्तबा जैसा कायनात में कोई नहीं, जो सूरत में अली हो और सीरत में नबी हो, जो सूरत में नबी हो और सीरत में अली हो। जहाँ तक मौला की सुलह का मामला है तो वो इन शराइत पर हुई थी कि ठीक है मैं मसला खिलाफत छोड़ देता हूँ, मगर माविया अपने बात अपनी मर्जी से किसी को खिलाफत मुंतकिल नहीं करेगा। ये मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा ने जिस वक्त खिलाफत छोड़ी उस वक्त जो है मेरे मौला ने ये कहा था कि कोई माविया जो है ये खिलाफत किसी को मुंतकिल नहीं करेगा और शरीयत रसूल पर पाबंद रहेगा। तमाम फैसले शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक होंगे। मेरे बाबा पर सबो शितम नहीं होगा। उस वक्त उन्होंने तमाम शराइत मान ली, मगर फिर बाद में मुकर गए। उस वक्त उन्होंने मौला हसन से कहा कि ठीक है हम आपकी तमाम शराइत मानते हैं, लेकिन बाद में मुकर गए। मौला अली पर सबो शितम जारी रहा, फैसले भी अपनी मर्जी से होने लगे, इक़्तिदार भी अपनी मर्जी से यजीद को सौंप दिया। इक़्तिदार भी उन्होंने अपनी मर्जी से यजीद को सौंप दिया, इसीलिए मौला हसन को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया और जद्दा से जहर दिलवाया गया। खुदा लानत करे इन मलूनों पर, ताकि यजीद का रास्ता जो है हमवार हो सके। मौला इमाम हसन अल मुश्तबा को जद्दा के जरिए जहर दिलवाया गया ताकि यजीद का रास्ता हमवार हो सके। मेरी माँ बहनों अज़ादारों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब आपको मसमूम कर दिया गया तो फिर दुश्मनाने अहले बैत को चैन नहीं आया। जब मेरे मौला हसन अल मुश्तबा को मसमूम किया गया तब भी दुश्मनाने अहले बैत को सुकून नहीं था। मेरे मौला के जनाजे पर रोज़े रसूल की जानिब बढ़ा तो मरवान बिन हकम के कहने पर आपके जनाजे पर तीर बसाएंगे। इतना जुल्म सितम मेरे मौला की पाक ज़ात पे किया गया कि मेरे मौला के जनाजे पर भी तीर बसाए गए। रसूल की जिगर गोशा को रसूल के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। इतनी दुश्मनी, इतनी मुखालफत थी मेरे मौला इमाम हसन अल मुश्तबा के साथ। आखिरकार आपको जन्नतुल बकी में अपनी वालदा के पहलू में दफन किया गया। मौला हसन सब जानते थे कि बाबा अली और मेरी शहादत से करबला का दरवाज़ा खुलेगा, इसीलिए आपने एक वसीयत नामा बतौर तवीज़ अपने बेटे कासिम के बाजू पर बांध दिया और फरमाया कि जब मेरे भाई हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो इसको खोल के मेरे भाई हुसैन को देना, तो कासिम तुम्हें जंग की इजाज़त मिल जाएगी। मेरे मौला हसन अपने नाना के दीन पर कुर्बान होने वाला पहला शहीद है। ये वो पहले शहीद है जो अपने नाना के दीन पर कुर्बान हुए। आज उसी शहजादे की विलादत का दिन है जिसकी विलादत के बगैर करबला नामुकम्मल है। ये वही शहजादे की विलादत का दिन है जिसकी विलादत के बगैर करबला नामुकम्मल है। मौला ने जो शराइत रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि दुनिया इनकी हकीकत को जान ले, दुनिया इनकी हकीकत को जाने, इनकी शान को पहचाने, दुनिया को मालूम हो कि क्या फजीलत, क्या मर्तबा मकाम है अहले बैत की ज़ात का, कि इनके नज़दीक अहले बैत रसूल की क्या अहमियत है। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसा दीन है, ये कैसे मुसलमान है, ये कैसा दीन है, ये क्यों हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो करबला में झांक कर देख ले कि हुसैन से बैत तलब की जा रही थी। जब मायूसी हुई तो सबको शहीद कर दिया, जब मायूसी हुई तो सबको शहीद कर दिया गया और इतरतों को कैदी बनाकर दरबार में बुलाया गया।
اتنا ظلم و ستم میرے مولا کی پاک ذات پر کیا گیا. تو اس وقت یزید نے بنو امیہ کی حقیقت کو، اسلام کو کچھ اس طرح سے ظاہر کیا کہ کوئی رسول نہیں، کوئی وحی نہیں، یہ بنو ہاشم کا اقتدار کے لیے ایک کھیل تھا جو میں نے ختم کر دیا. آج میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے اور مجھے شاباشی دیتے. اسی لیے تو شرائط رکھی گئی تھی. آپ سب کو مولا حسن المجتبیٰ کی پاک آمد، مجھ کنیز حسین کربلائی کی جانب سے میرے تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے، بالخصوص امام زمانہ آخر زمان بادشاہ کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو. بولو بولو سخی سرکار کلندر ناصری حیدر.